Then we are discussing about the chapter laws of motion. इसमें ऑलरेडी हमने जो है वो देख लिया है, मैंने ऑलरेडी ये वीडियो अपलोड किया हुआ है, यू कैन गो थ्रू दैट कि आई ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड द लॉ ऑफ मोशन. इन लॉज ऑफ मोशन, लॉ ऑफ इनर्शिया, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ and momentum means linear momentum. All these four topics I have already discussed. Then right now we are going to study equilibrium of the particle, and then the very most important topic of this chapter, and for the next chapters, this is free body diagram. Then what happened, what do you mean by equilibrium of particle? What do you mean by equilibrium of particle? Any body, let's say this is our body, this is an object, or we can call it the body. Let's say this is an body, and what happened here, the net external force, let's say कि इस पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं. लेट्स से दिस इज द F1, F2, like that F3 and all other forces. There are many different types of forces. We are considering that there are three types of forces in different directions are acting. One is also its weight mg and the normal reaction. These are all the forces acting on this object. What happens when the net external force, the next external force will becomes 0, means F1 plus F2 plus F3 equal to 0, N plus W, it all 0. If the sum of these forces becomes 0, then we can call it that this body is in equilibrium. It is in equilibrium. Why I have written two types of equations. One is this, another one is this one. Why? Because the direction is different. This F1, F2, F3 acting along the x direction, but the normal reaction and the weight of the body acting in the y direction. It means that F external 0 means there are three types of direction we are considering: x direction, y and z direction. Then if the sum of the forces acting in x direction will 0, the sum of the forces acting in y direction becomes 0, and sum of the forces acting in z direction is becomes 0. Then summing it all, we can say that the body is in equilibrium. हम आगे भी देखेंगे, कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे कि इक्विलिब्रियम, वो पार्टिकल इक्विलिब्रियम है तो हम कैसे जो अननोन हमारा जो फिजिकल क्वांटिटी होगा उसका वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं. But for apply this concept, we have to first know free body diagram. What is free body diagram? Then हम इसको thoroughly डिस्कस करते हैं. What is free body diagram? Okay, and in short form we call it FBD. It is very important to understand the FBD of any particle to solve the equations by applying the law of the motion. Then what happen, let's say हम सिंपल एक एग्जांपल लेते हैं. लेट्स से कि, और मैं इसमें बहुत सारे जो आपके आगे नेक्स्ट प्रॉब्लम्स आने वाले हैं उसको एक करके डिस्कस कर दूंगा. ठीक है, तो लेट्स से कि हमारा ये ब्लॉक है. ठीक है, ये हमारा एक टेबल पर रखा हुआ है, और ये टेबल जो है या सरफेस जो है, लेट्स से ये फ्रिक्शन लेस है.
अगर वो फ्रिक्शन आएगा हम एक एक करके पढ़ेंगे, पहले हम फ्रिक्शन लेस की बात कर रहे हैं, फिर जब बॉडी विथ फ्रिक्शन होगा तब देखेंगे। अब क्या हो रहा है, लेट से इस पर हमने एक एक्सटर्नल फोर्स F1 अप्लाई किया है। हमने क्या किया है, F अप्लाई किया, लेट से F हमने अप्लाई किया है, ठीक है, F हमने अप्लाई किया है, लेट से ये F1 है, और एक और हमने फोर्स अप्लाई किया है F2, ठीक है, F2 अप्लाई कर दिया है। अब फ्री बॉडी डायग्राम क्या कह रहा है कि भैया क्या हो रहा है, बोलता है इसको फ्री बॉडी डायग्राम स्टेप 1 बोलता है कि फ्री द ऑब्जेक्ट फ्रॉम अदर ऑब्जेक्ट्स और सरफेस। बोलता है ये जो ऑब्जेक्ट है जिसको तुम सिस्टम माने हो, ऑब्जेक्ट मीन्स आप जिसको सिस्टम माने हुए हो, आप जिसको सिस्टम माने हुए हो, बोलता है उसको फ्री कर दो सरफेस से जितने भी लगे हुए हैं, ठीक है। सेकंड बोलता है ओनली कंसीडर फोर्सेस एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। ये कभी नहीं भूलना है, ऑन द पार्टिकल और सिस्टम, एक्टिंग ऑन, उस पर क्या क्या फोर्सेस लग रहा है वो देखना है, ना कि वो क्या क्या फोर्सेस लगा रहा है उसको हमको कंसिडर नहीं करना है। थर्ड बोलता है ड्रॉ लाइन डायग्राम ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट, उस पर क्या क्या फोर्स लग रहा है उसको डायग्राम को ड्रॉ करना है। और फोर्थ वन कह रहा है अप्लाई हम कह सकते हैं देन अप्लाई लॉ ऑफ मोशन फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम, लॉ ऑफ मोशन। तो हमने क्या किया, इसको एक सिंपल सा एग्जांपल है, हमने इस ऑब्जेक्ट को फ्री कर दिया, हमने उस सरफेस से फ्री कर दिया। अब हमें देखना है, पहला तो फ्री कर दिया इस ऑब्जेक्ट को, ये हमारा सिस्टम है। अब हमें देखना है कि इस पर क्या क्या फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। तो इस पर पहला तो फोर्स एक्ट क्या कर रहा है, ये F1 कर रहा है। दूसरा फोर्स क्या एक्ट कर रहा है इस पर, F2 कर रहा है। और भी कुछ फोर्सेस है क्या, यस एग्जैक्टली, ये जो है इसका वेट जो है, मास अगर m है तो mg, ये हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करता है। आप प्रीवियस में आप जाना, मैंने डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेस ऑलरेडी आपको डील किया हुआ है, ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेस मैं आगे भी जो है ये ऑलरेडी मैंने डील किया हुआ है, कॉमन फोर्सेस मैकेनिक्स, बट आगे हम थोरोली प्रॉब्लम्स के थ्रू जाएंगे, बट इसका बेसिक जो कॉन्सेप्ट है ऑलरेडी मैंने बता दिया है, ठीक है। अब ये जो सरफेस होता है हमेशा जो है, बॉडी अगर वेट नीचे लग रहा है तो ये जो सरफेस है जिस पर वो रखा हुआ है, वो सरफेस भी एक रिएक्शन फोर्स लगाता है जिसको नॉर्मल फोर्स भी कहते हैं, वो हमेशा वर्टिकली अपवर्ड होता है, ये जरूर ध्यान देना है, ठीक है ना। इसको N या R से दिखाते हैं, N या R से दिखाते हैं। अब लेट से, क्योंकि ये तो सरफेस है, अब ये तो हमारा हो गया कि कर दिया, और फिर हमने लाइन डायग्राम भी ड्रॉ कर दिया। अब हमें अगर न्यूटन लॉ ऑफ लगाना है, लेट से अगर ये ऑब्जेक्ट सिर्फ रेस्ट पर था, अगर ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पर था, तो देखो पहली बात तो वर्टिकल मोशन इसका हो नहीं सकता है, मीन्स क्या है, N = W, इक्वेशन नंबर 1, यानी नॉर्मल रिएक्शन जो है वो क्या है, W में mg, फर्स्ट वन तो ये इक्वेशन है। सेकंड देखो क्या हो रहा है, अगर इसका हम मान लिया है हमने कि मास क्या है, A है। अब देखो तो जरा ध्यान से, लेट से कि F1 इज ग्रेटर देन F2, F1 इज ग्रेटर देन F2, तो क्या हो रहा है जरा ध्यान से देखो, F1 इधर की ओर इस बॉडी को मूव कर रहा होगा, या कह सकते हैं मैं एक एक्सेलरेशन दे रहा होगा F1 की तरह। तो नेट फोर्स इसका क्या आ रहा है, देखो तो इधर F1 माइनस F2, देखो ना, ये फोर्स इधर अगर ये 10 न्यूटन है और ये इधर 5 न्यूटन लग रहा है, तो एग्जैक्टली इस बॉडी पर कितना फोर्स लग रहा है, 10 - 5 10, पॉजिटिव x, और F नेगेटिव, तो पॉजिटिव माइनस नेगेटिव, क्यों, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, उसको भी डायरेक्शन को ध्यान देना है। तो दिस वन, ये जो है यही इस ऑब्जेक्ट को क्या देगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। क्यों, हम जानते हैं ऑलरेडी कि जिस पर जो फोर्स एक्ट करता है, फोर्स का फॉर्मूला हम ऑलरेडी सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से निकाल चुके हैं हम,
कि फोर्स इज नथिंग बट मास इनटू एक्सेलरेशन, उस पर लग रहा है। तो ये हमारा हो गया, ठीक है ना। इसको इक्वेशन नंबर 2, आप इस इक्वेशन को सॉल्व करके जो भी आपको निकालना अननोन है दिख जाएगा। तो बेसिकली ये जो हमारा था, जो लाइन डायग्राम ड्रॉ किया, इसको बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। ये फ्री बॉडी डायग्राम, वो था इक्वेशन कैसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम। नेक्स्ट हम क्या देख रहे हैं कि लेट से वही ऑब्जेक्ट है, बट अब फोर्स जो है वो समथिंग थीटा एंगल पर लग रहा है, वो जो है हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा पर लग रहा है। तो इस केस में हम क्या करेंगे कि इस फोर्स को पहले तो हम रिजॉल्व कर लेंगे, जो ऑलरेडी मैंने रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स चैप्टर में बताया हुआ है। तो हमने क्या क्या रिजॉल्व किया है, जिस सरफेस से एंगल थीटा बनाता है उधर जो इसका कंपोनेंट आएगा वो एफ कॉस थीटा आ जाएगा, और ठीक उसके परपेंडिकुलर जो है वो क्या आ जाएगा, एफ साइन थीटा आ जाएगा, एफ साइन थीटा। अब हम जो है इसका फ्री बॉडी डायग्राम जरा बनाते हैं। तो फ्री बॉडी डायग्राम में अब हमें क्या दिख रहा है, अब हम इसको भूल जाएंगे जरा, अब हम इस पार्ट को भूलकर हम उसका कंपोनेंट्स को ले लेंगे। क्यों, ये बॉडी का हम देखेंगे तो ये टू क्या बोल सकते हैं हम कि 2D इसका स्टडी कर रहे हैं, 2 डायमेंशन स्टडी। तो पहला अगर हम ये बात करते हैं, इधर क्या लग रहा है, अब एफ कॉस थीटा लग रहा है, ठीक है ना। इसका वेट क्या लग रहा है, W = mg, वर्टिकली डाउनवर्ड, और वो जो सरफेस एक नॉर्मल रिएक्शन दे रहा होगा वो क्या है, n, ये वर्टिकली अपवर्ड। अब एक और फोर्स भी लग रहा है, F साइन थीटा, ये जो है F साइन थीटा, वो भी जो है वर्टिकली अपवर्ड ही लग रहा है, F साइन थीटा, F साइन थीटा। अब अगर हम इक्विलिब्रियम को देखते हैं, इफ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, लेट से अगर ये बॉडी रेस्ट में है तो इसका मतलब ये है कि एफ कॉस थीटा जो है, एफ कॉस थीटा को अभी देख लेते हैं पहले। अब देखो ये क्या है, वर्टिकल डायरेक्शन में कहते हैं, वाई डायरेक्शन में बॉडी क्या है, बॉडी इज इन रेस्ट, मीन्स वाई डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं हो रहा है, मीन्स जो W है हमारा वो डाउनवर्ड है और वो अपवर्ड, तो डाउनवर्ड को एक तरफ लिखेंगे हम और अपवर्ड को एक तरफ, तो W क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन और F साइन थीटा के बराबर हो जाएगा। क्यों, ये बॉडी वाई डायरेक्शन में क्या है, इक्विलिब्रियम में है। लेकिन लेट से अगर बॉडी इधर ये फोर्स लगाने पर, अगर ये फोर्स लगा रहे हो तो मूव करेगा, किधर की ओर मूव करेगा, इधर मूव करेगा। तो यही जो अगर सेकेंड में देखेंगे एक्स डायरेक्शन में, इन एक्स डायरेक्शन देखोगे तो ये जो एफ कॉस थीटा है, सिर्फ यही एक फैक्टर है जो इस बॉडी को एक्सेलरेट कर रहा है, मोशन में ला रहा है। तो यही एफ कॉस थीटा ही इस बॉडी को क्या देगा, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन। आप इसको सॉल्व करके, आप इसमें अगर एंगल पता है, इसको सॉल्व करके एफ का वैल्यू यहाँ बैठा दोगे तो सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है ना। या नॉर्मल रिएक्शन चाहिए तो वो मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया सेकेंड टाइप का एफबीडी। अब नेक्स्ट एक ऑब्जेक्ट को देखते हैं, हटा रहा हूँ इसको। नेक्स्ट देखो आप, लेट से बॉडी जो है वो एक प्लेन हॉरिजॉन्टल सरफेस में ना होकर वो बॉडी कुछ इंक्लाइंड प्लेन में है। लेट से ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान देना है, ये इंक्लाइंड प्लेन है, मीन्स सरफेस जो है वो क्या है, समथिंग हॉरिजॉन्टल से अपवर्ड है, इंक्लाइंड है, जो स्लाइड करता है। ये ऑब्जेक्ट लेट से यहाँ ऐसे रख दिया गया है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है हमारा। इसका लेट से कि जो मास है हमारा वो स्मॉल m है, स्मॉल m है, ठीक है। और हमें कुछ भी ये नहीं दिया है, और हमें कुछ भी वैल्यू नहीं दिया है, बोला गया कि इसका बनाओ आप एफबीडी बनाओ, फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। तो चलो अब देखते हैं हम, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, जरा देखो। अब मैं अलग इसको करने के बजाय मैं इसी में लाइन ड्रॉ कर देता हूँ एफबीडी की, ठीक है ना। आपको भी वही करना है, लाइन में ड्रॉ कर लेना, उतना टाइम नहीं होता। अब देखो हम यही बना दे रहा हूँ मैं। अब देखो पहला तो इसका वेट होगा, ये हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड होता है, वो ऐसे ना होके जो हॉरिजॉन्टल में ऐसा नहीं करना है, ये हमेशा डाउनवर्ड ही होता है। तो ये इसका वेट हो गया mg, ठीक है। अब ये सरफेस है, ये सरफेस पर रखा है, तो ये सरफेस अपने नॉर्मल पर ये ऐसे, ये नॉर्मल रिएक्शन होगा, ये नहीं W के अलॉन्ग नहीं हो जाएगा, समझ रहे हो ना, ये नॉर्मल रिएक्शन हो गया। अब देखो जरा, ये जो है ये थीटा है तो ये भी थीटा ही होगा। अब जाओगे तो जियोमेट्री में
तो अब देखो ये जो वेट है इसका दो कंपोनेंट हो गया, एक तो इधर आ गया इस डायरेक्शन में, इससे एंगल बना रहा है ये सरफेस एंगल थीटा, तो इधर जो आ गया वो क्या आ गया mg cos थीटा हो गया ना, mg cos थीटा। और ठीक इसके परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में वो क्या आ गया mg sin थीटा, mg sin थीटा। अब क्योंकि इंक्लाइंड प्लेन पर रखे हो और ये सरफेस अगर फ्रिक्शनलेस है तो बॉडी नीचे की तरफ मूव करेगा। तो जरा आप इक्वेट करो, वाई डायरेक्शन में तो मोशन नहीं हो रहा है, तो अब जो नॉर्मल है वो पहले mg था, अब क्या हो जाएगा mg cos थीटा हो जाएगा, ठीक है। और नीचे जो मूव कर रहा है बॉडी मूव कर रहा है, तो यही जो mg है मास इनटू एक्सेलरेशन यही नीचे ले जा रहा है ना, एक्सेलरेट कर रहा है बॉडी, तो क्या हो जाएगा फोर्स उस पर क्या लग रहा है, तो वही फोर्स लग रहा है मास इनटू एक्सेलरेशन, और वो कौन बॉडी को मूव कर रहा है mg साइन थीटा। यही जो फैक्टर है mg साइन थीटा वही बॉडी को नीचे मूव कर रहा है। नीचे अगर मूव कर रहा है ये फोर्स लगा रहा है तो उस बॉडी पर टोटल फोर्स क्या लग जाएगा मास इनटू एक्सेलरेशन, और वो कौन देगा mg साइन थीटा, ठीक है। अब जरा इन दोनों को अगर डिवाइड कर दोगे तो एक नया इक्वेशन बन के आ जाएगा, या डिवाइड कर दोगे तो नया इक्वेशन निकल के आ जाएगा। मीन्स अगर इसको काट देते हैं हम इस इक्वेशन में तो ए कट गया हमारा, एम कट गया, तो ए क्या निकल के आ गया जी साइन थीटा। तो ये भी याद रखना है, यानी अगर मोशन वर्टिकल मोशन हो इंक्लाइंड मोशन हो रहा है तो ये जो एक्सेलरेशन है वो सिंपली निकल के क्या जाएगा जी साइन थीटा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, ठीक है। जी साइन थीटा से एक्सेलरेट कर रहा है बॉडी डाउनवर्ड की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। नेक्स्ट अब जरा नेक्स्ट हम जाते हैं, ये तो सिंपल था, अगर फोर्सेस लगे आप फोर्सेस कंसिडर कर सकते हो, मैं सिंपल होके जा रहा, ठीक है। अब जरा देखते हैं जरा कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये कुछ सिंपल न होके तीन ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये कुछ इस तरह से सरफेस पे रखा हुआ है इस तरह से, और एक फोर्स F इधर लग रहा है, लास्ट ब्लॉक पर हम फोर्स लगा रहे हैं। इसका मास m1 है, m2 है और m3 है, और ये स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, ये स्ट्रिंग या रोप से कनेक्टेड है, ठीक है। ये भी मैंने बता दिया था। अब देखो अगर सिंगल रोप होगा, सिंगल रोप या सेम रोप देन सेम टेंशन, जो स्ट्रिंग में जो फोर्स लगता है उसको टेंशन फोर्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है कि देखो यहाँ पर लेट से कि ये जो इसमें जो टेंशन लगे मानते हैं T1 लगे, और इस रूप में ये रूप सिंगल अलग रूप है, और ये इस ब्लॉक को कनेक्ट करता हुआ अलग रूप है, ये T2 रूप है। अब F उधर लगा रहे हो, सरफेस फ्रिक्शनलेस है, जब तक बोला ना जाए तब तक सरफेस को फ्रिक्शनलेस ही कंसिडर करना है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है, हम एक एक करके फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। पहले M3 के लिए बनाते हैं, M3 ये हमारा M3 है, हमने सरफेस से क्या कर दिया फ्री कर दिया। अब जरा ध्यान से देखो, अब इस पर क्या क्या फोर्स F राइट हैंड साइड में, और बैक एंड में क्या लग रहा है ये स्ट्रिंग, इस पर क्या करो ये इधर लगा रहा हो तो स्ट्रिंग इसको बैकवर्ड फोर्स लगा रहा होगा, वो मान लेते हैं T1 है, और इसका मास जो है वेट जो है M3G नीचे, और ये सरफेस एक नॉर्मल रिएक्शन दे रहा होगा, लेट से वो N1 है, ये N1, ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना दिया। अब इक्वेट करना है तो आप कर सकते हो। अगर ये ब्लॉक आगे बढ़ रहा था, जरा ध्यान से देखो, अगर ये ब्लॉक आगे बढ़ रहा था, नहीं बढ़ा तो अलग है, लेकिन इधर एक्सेलरेट हो रहा है, मीन्स ये जो F है वो टेंसाइल फोर्स T1 से बड़ा है, तो हम लिख सकते हैं कि F माइनस T1 यही इसको क्या देगा मास इंटू एक्सेलरेशन देगा। और वर्टिकल में अगर N1 की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा M3G। जरा 2 की बात करें हम, अगर ब्लॉक नंबर 2 की बात कर रहे हैं हम M2 की, तो जरा देखो पहले तो नीचे इसको एक लग रहा होगा, फ्री बॉडी डायग्राम अगर हम बना रहे हैं तो FBD, तो इसका वेट जो है वेट M2G नीचे लग रहा होगा, नॉर्मल रिएक्शन लेट से इस पर जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है M2 लग रहा है। अब देखो इस ब्लॉक पर क्या लग रहा होगा, ये जो रोप है ये आगे जा रहा होगा,
तो ये ब्लॉक आगे जा तो ये भी ब्लॉक आगे जा रहा होगा, तो इसको कोई तो फोर्स होगा जो आगे ले जा रहा होगा, वो कौन सा होगा? T1 ही होगा। देखो इस ब्लॉक के लिए टेंसाइल फोर्स T1 अलग है इस डायरेक्शन में, लेकिन इसके लिए आगे है तो ये फ्रंट में होगा, क्योंकि उधर बॉडी मूव कर रहा है, मूव कराने के लिए ये एक फैक्टर है। अच्छा, लेकिन ये पीछे क्या हो रहा होगा? ये जो T2 है इसको अपोज कर रहा होगा, पीछे क्या लग रहा है? T2 लग रहा है। लेकिन ध्यान देना है, लेकिन अगर ये ऑब्जेक्ट आगे बढ़ रहा है यानी T1 इज ग्रेटर देन क्या है? T2 है, तो T1 माइनस T2 यही इसको क्या दे रहा होगा? मास इंटू यहाँ पर 3 लिख लो, ये ब्लॉक M3 था ना, ठीक है, यही इसको क्या दे रहा है? मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है, क्योंकि एक ही सिस्टम कनेक्टेड है सारा, तो सारे ब्लॉक का एक्सेलरेशन भी एक होगा। जिस एक्सेलरेशन से M3 मूव करेगा वही M2 भी करेगा और वो भी M3, एक ही सिस्टम है। अगर बाद में कंसिडर करेंगे तो इसको भी पूरा आप सिस्टम मान सकते हो, ठीक है ना, वो बाद में देखेंगे हम, ठीक है। अच्छा, अब वर्टिकल देखेंगे तो N2 क्या हो जाएगा? M2G, ठीक। चलो अब जरा M1 की बात करते हैं। हम क्या करते हैं? M1 की बात करते हैं। जरा M1 का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं। तो ये तो हमारा M1 हो गया, ठीक है। नीचे इसको क्या लग रहा है? वेट इसका क्या लग रहा है? M1G, वेट क्या लग रहा है? M1G, ठीक है, वेट। और एक नॉर्मल रिएक्शन N1 क्या हो रहा है? अच्छा हाँ ठीक है, चलो इसको N3 आप मान लो, सबको थोड़ा अलग अलग नाम दे दो, ठीक है ना। ये N3 हो गया, ब्लॉक M पर लग रहा है तो ठीक है, आप कुछ भी नाम दे सकते हो यार, दे लो यार, N1 ही दे लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अभी सब यही चल रहा है, चलने दो। अगर ये नॉर्मल N3 है और इधर देखो इस ब्लॉक पर ये T2, इधर इसको आगे बढ़ाने वाला कौन सा फैक्टर होगा? वो टेंसाइल फोर्स रोक का T2 ही होगा, तो ये T2 है। और इक्वेशन आप अगर लिखना चाहो तो ये जो ब्लॉक पर T2 लग रहा है वही इसको क्या दे रहा है? M3 है, मास इनटू एक्सेलरेशन। और ऊपर की ओर बात करें तो नॉर्मल फोर्स जो N3 है वो क्या है? M1G है, ठीक है, M1G है। तो ये अलग अलग ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम है। और हमें रोप के बारे में देखना है कि सेम रोप है तो सेम टेंशन, डिफरेंट रोप है तो डिफरेंट टेंशन। अब जरा इसी को कंसिडर कर लेते हैं, इसी को जरा, ये तो अलग अलग फ्री बॉडी डायग्राम बन गया। अब जरा एक कॉमन इसका बात करते हैं हम, ठीक है, ये हटा रहा हूँ मैं, इसी को देखते हैं। अब अगर हमने ये पूरे को, अगर पहले तुम सेपरेट देखा ना, अब मानते हैं कि तीनों ब्लॉक को हमने क्या किया? एक सिस्टम कंसिडर कर लिया है। तीनों ब्लॉक को एक साथ हमने क्या कर लिया? सिस्टम कंसिडर कर लिया है, ठीक है। तो इस केस में क्या हो जाएगा कि जो टोटल मास होगा ये कंप्लीट सिस्टम का, वो नथिंग बट द सम ऑफ M1 M2 M3, ये टोटल मास हो जाएगा, ठीक है ना, ये टोटल मास हो जाएगा, ठीक है। अब F की बात करो, जो फोर्स है टोटल बॉडी का, तो कैपिटल M बाई ये एक्सेलरेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा F इक्वल टू नथिंग बट, तीनों का आप मास जोड़ दो तो टोटल सिस्टम का पता चल जाएगा वैल्यू कि किस एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, किसी को आप कर सकते हो। अब अगर हमें किसी एक ब्लॉक पर निकालना है, हमें किसी एक ब्लॉक पर निकालना है हमें, तो आप कोई भी एक वैल्यू पुट कर दोगे एक्सेलरेशन का। लेट से कि हमें चाहिए था, लेट से हमें इसका चाहिए T2 का वैल्यू चाहिए, हमें T2 का वैल्यू चाहिए। तो T2 हमने निकाल रखा था कि T2 नथिंग बट था M3 इंटू A, ठीक है ना। तो हमने M3 लिख दिया, कोई बात नहीं भैया, ठीक है। अब जरा देखो ध्यान से, अगर A का वैल्यू निकालते हो यहाँ से, तो A क्या होगा? F बाई M1 प्लस M2 प्लस M3, ये है ना A का वैल्यू। आप A का वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, तो F ऊपर आ गया और बाई M1 प्लस M2 प्लस M3। तो आप वैल्यू निकाल के किसी में आप पुट कर सकते हो, जो भी होगा। अगर ये 1 kg है, 2 kg है, 3 kg, आप सम अप कर सकते हो। तो ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम। अब जरा हम देखते हैं कि इंक्लाइन प्लेन में कुछ ब्लॉक है तब क्या हो रहा होगा। लेट से कि ये हमारा ब्लॉक जो है वो कुछ इस तरह इंक्लाइन प्लेन में था,
एक ब्लॉक हमने सिंगल ब्लॉक का किया था। अब क्या हुआ कि यहाँ पर हमने एक पुली लगा दिया है, इस पुली से एक रोप होके जा रहा है और एक ब्लॉक नीचे भी हैंग कर रहा है, एक ब्लॉक जो है नीचे भी हैंग कर रहा है। लेट से कि इसका मास m1 है, इसका मास जो है वो m2 है और ये एंगल थीटा है इंक्लाइन का। अब हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना चाहते हैं अलग अलग ब्लॉक का। लेट से पहले का बनाते हम m1 का, तो इसको नीचे जो लग रहा होगा वो क्या लग रहा होगा, m1g। अब क्योंकि सरफेस नहीं है, सरफेस पर नहीं हैंग कर रहा है, तो इसमें कोई भी रिएक्शन फोर्स नहीं लगेगा। लेकिन हाँ, इस पर एक फोर्स जो है वो लेट से T टेंशन है, तो ये टेंशन फोर्स ही उसको ऐसा है जो हैंग करके ऊपर रखा हुआ है, स्ट्रिंग का टेंशन ही। अगर ये m1g ग्रेटर देन टेंसाइल फोर्स हो गया तो ये रोप जो है ब्रेक कर जाएगा, बॉडी जो है फॉल कर जाएगा, ये ध्यान देना हमें, ठीक है। तो ये है। और लेट से अगर ऐसा कंसीडर हो रहा है कि ये ब्लॉक इधर की ओर मूव कर रहा है, इधर मोशन है उसका, तो अगर इसका हम निकालना है तो कह सकते हैं कि इस केस में अगर ऊपर मूव कर रहा है तो क्या है, टेंशन फोर्स बड़ा होगा रोप का, एक ही रोप है देखो, ठीक है ना, तो एक ही टेंशन हर जगह होगा। तो T माइनस m1g यही इस ब्लॉक को क्या दे रहा होगा, एक्सेलरेशन है इस ब्लॉक के लिए, ये उधर जा रहा होगा तो ये अपवर्ड जा रहा होगा, तो ये मिल रहा होगा, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। अब दूसरे के लिए जरा हम देखते हैं, तो देखो ये पुली में होगा, पुली को ये रोप इधर खींच रहा होगा, इधर से ये इधर खींच रहा होगा, पुली पर टोटल 2T लग रहा है, लेकिन इस ब्लॉक को क्या कर रहा होगा, टेंशन फोर्स ऊपर की ओर खींच रहा होगा, लेकिन ये नीचे आ रहा है। तो इस ब्लॉक का अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे आप इस तरह से है, तो गौर करोगे तो एक तो इसको नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है लेट से n, एक तो इसका वेट नीचे की तरफ लग रहा है क्या, m2g। अगर इसी में अगर देखोगे गौर से, अगर ये m2 हटाता हूँ मैं, जरा गौर से देखो तो क्या होगा, ये m1 m2g नीचे की तरफ वर्टिकली डाउनवर्ड एक रिएक्शन फोर्स नॉर्मल ऊपर, क्योंकि सरफेस पर है, तो यही वेट का क्या है, ये थीटा है, ये थीटा हो जाएगा, तो ये m2g cos थीटा और ये क्या हो जाएगा m3g m2g साइन थीटा। अभी हमने देख लिया था, उसका कंपोनेंट कर देंगे हम। तो ये जो आने वाला है इधर क्या आने वाला है, ये आ गया हमारा m2g cos थीटा, और एक इधर इसको टेंशन फोर्स लग रहा है और इसको नीचे की तरफ जो प्लेन पर ले जा रहा है वो क्या है, m2g साइन थीटा, m2g साइन थीटा। अब अगर इसके लिए हम इक्वेशन लिखेंगे तो पहला तो बॉडी नीचे जा रहा है, तो ये इक्वेशन हो जाएगा इस ब्लॉक के लिए, हो जाएगा हमारा, इस ब्लॉक के लिए हमारा हो जाएगा m2g साइन थीटा माइनस T, यही इस ब्लॉक को क्या दे रहा है, मास इनटू एक्सेलरेशन। अच्छा, वर्टिकली अपवर्ड तो n क्या हो जाएगा, m2g cos थीटा। आप सारे इक्वेशन को सॉल्व करके जो भी वैल्यू निकालना है आप इक्वेशन को सॉल्व करके वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो इस तरह ब्लॉक का हमने देख लिया कि कैसे कैसे ये सॉल्व हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, हटा रहा हूँ मैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट। अब हमने क्या किया, ये ऐसा न करके हमने कर दिया कि जो है हमारा वो एक सरफेस है हमारा, वो ब्लॉक जो है वो पुली में लगा हुआ है, ठीक है, और ये पुली है और इधर से एक ब्लॉक इधर हैंग कर रहा है और एक ब्लॉक जो है ये ऐसे हैंग कर रहा है, ठीक है। दो ब्लॉक है, ये m1 है, ये m2 है, और ये हेवियर है, m1 इज ग्रेटर देन m2। तो बॉडी क्या है, इधर की ओर मूव करेगा, इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन इधर होगा और ये ब्लॉक उधर की मूव करेगा। अब जरा यहाँ ध्यान से देखो कि एक ही रोप पास हो रहा है सारे से, तो इसका हम लिखेंगे, तो इसके लिए अगर हम करना चाहेंगे तो कर सकते हैं कि इस पर क्या लग रहा है, मैं इसी में डायरेक्ट बना दे रहा हूँ। इसका फ्री बॉडी डायग्राम अगर बनाना चाहते तो हम देखते कि m1g इसको डाउनवर्ड लग रहा है और टेंशन फोर्स ऊपर लग रहा है, इस पुली को टेंशन इधर खींच रहा है, इस पुली को टेंशन इधर खींच रहा है, लेकिन इस ब्लॉक को इधर खींच रहा है, अपवर्ड जा रहा है। तो इस इक्वेशन रखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, T माइनस m1g, यही इसको क्या दे रहा है, मास इनटू एक्सेलरेशन, लेकिन उस ब्लॉक के लिए टेंशन ऊपर ले जा रहा है, इसका ये चीज़ जो है वो नीचे की तरह है, तो क्या लिखेंगे
कि ठीक है, ये इसके ऊपर खींच रहा है तो ये हो जाएगा T माइनस M2G इक्वल टू क्या हो जाएगा M2A। इसको आप सॉल्व कर सकते हो, ऐसे वो निकाल सकते हो। अच्छा लेट से कि ये बॉडी नीचे की ओर मूव कर रहा है, सॉरी ये यहाँ पर उल्टा लिख देंगे हम। ये बॉडी अगर नीचे की ओर मूव कर रहा है तो ये पहले आएगा ना, M1G ग्रेटर देन होगा, तो M1G माइनस T इस ब्लॉक के लिए ये इसको देगा M1A, सॉरी उसके लिए ये इक्वेशन बन जाएगा। आप अगर ये दोनों को सम अप कर दोगे, इक्वेशन 1 और 2 को आपस में अगर ऐड ऑन कर देते हो तो देखोगे ये टेंशन कट गया, जो फाइनल आया वो M1G माइनस M2G इक्वल टू M1 प्लस M2 इंटू A आ गया, ये आ गया ना, ठीक है ना। आप मास का वैल्यू रख सकते हो, आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा। जी का वैल्यू ऑलरेडी अगर नहीं दिया है तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पहले ही है 81, ठीक है ना। अगर गिवन है जी का वैल्यू तो उसको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर वो दिया होगा। तो इस तरह आप प्रॉब्लम को फ्री बॉडी डायग्राम की हेल्प से सॉल्व कर सकते हो। अब नेक्स्ट हम देखेंगे फ्री बॉडी डायग्राम के फ्रिक्शन फोर्स अगर सरफेस पर एक्ट कर रहा है तब आप कैसे उसका फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हो। ठीक है, थैंक यू।